Hello everyone, once again we are here to continue the explanation of our topic Realms of the Earth. Students, I told you when we start the chapter, I told you the different domains, different regions of the Earth, and that were lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. And we started with continents, and I told you about the continents. There are 7 continents in the world. Then we continued with the landforms, and I told you different forces which have been there all the time: exogenic and endogenic. Exogenic process, these are the external forces of the earth, and endogenic, which are the internal forces of the earth. And I told you about mountains also, and then we continued the different plateaus. Then we came to the plains. These were the lithospheric area of the earth. And now we are going to continue with the next part, that is hydrosphere. Hydrosphere means water bodies. Hydrosphere means water bodies. So hydrosphere हम किसको कहते हैं? The part of the earth's surface occupied by water bodies is called the hydrosphere. Oceans, which occupy nearly 2/3 of the area of the earth, are the major components of the hydrosphere. ओशंस, जो कि हमारे अर्थ का 2/3 एरिया ऑक्यूपाई किए हुए हैं, दे आर द मेजर कंपोनेंट्स. वो मेजर कंपोनेंट्स हैं वाटर बॉडीज़ के, हाइड्रोस्फीयर के. स्मॉलर वाटर बॉडीज सच एज सी, लेक्स एंड रिवर्स एक्सेट्रा आर द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. नाउ नेक्स्ट इज दिस ओशंस. तो ओशंस हैं, ओशंस आर large water bodies of water on the earth. These are the large water bodies on the earth, and there are 4 major oceans. The first and the biggest ocean, largest ocean, is Pacific Ocean. The Atlantic Ocean is the next one, then the Indian Ocean, and then the last but not the least is the Arctic Ocean. So Pacific Ocean, the largest ocean, underline these lines. Pacific Ocean, the largest ocean, covers about 1/3 of the area of the earth. This is larger than all the continents put together. और अगर हम पैसिफिक ओशन, आप लोग जानकर सरप्राइज होंगे कि इतना बड़ा है कि अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर दें तो जितना एरिया वो कॉन्टिनेंट्स कवर करेंगे, पैसिफिक ओशन उससे भी बड़ा है. मीन्स इट इज़ वेरी मच लार्ज. इट इज़ द डीपेस्ट ओशन, और ये डीपेस्ट ओशन है. और इसका एंड मरियाना ट्रेंच is the deepest ocean trench and is located within this ocean, and its deepest ocean's depth is 11,022 meters. The continent of the North and South America extend. जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो पैसिफिक ओशन तक, यहाँ तक भी फैला है, एंड एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेच ऑन द अदर साइड. और इसके दूसरे साइड पर ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया लोकेटेड है. सेकेंड ओशन इज़ द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन. is situated between the North and South America on the one side, and the other side
ड्यू टू द एन इरेगुलर शेप, क्योंकि अटलांटिक ओशन की शेप इज़ वेरी इरेगुलर, द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन आर लॉन्गर दैन द कोस्ट लाइन्स ऑफ द पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। इसलिए अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन कुछ ज़्यादा लंबी है एज़ कम्पेयर टू द कोस्ट लाइन्स ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। बिकॉज ऑफ दिस इंटेंडेंट कोस्ट लाइन, और इसकी कोस्ट लाइन इतनी बिग होने की वजह से देयर आर मेनी हार्बर्स, क्योंकि कोस्टल एरिया ज़्यादा है तो कोस्ट लाइन ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे हार्बर्स हैं ऑन द कोस्ट ऑफ दिस रीजन, दिस ओशन। हार्बर्स मीन्स समुद्री बंदरगाह। द अटलांटिक इज़ बिजिएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अटलांटिक दुनिया का सबसे बिजी ओशन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स इट इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ। And the fact that this ocean is situated between two of the most developed regions of the world, और एक और रीज़न है इसको अंडरलाइन करते जाइए कि ये ओशन दुनिया के टू मोस्ट डेवलप्ड रीजन्स के बीच में है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के। दैट इज़ वाई इट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। इसलिए यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा, यू कैन से इट इज़ वेरी मच इन अ लार्ज अमाउंट, और इट इज़ वेरी मच डन थ्रू दिस ओशन, द ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट इज़ द इंडियन ओशन। The Indian Ocean is bounded by land masses on three sides. Indian Ocean three sides पे Indian Ocean three sides से bounded है land masses से। एशिया फ्रॉम इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री, इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री पे एशिया है। ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ दिस ओशन। ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। इट इज़ द ओनली ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ओशन है नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ अ कंट्री, दैट इज़ इंडिया। द फैक्ट दैट द इंडियन ओशन इज़ नेम आफ्टर इंडिया शोज़, और इसका नाम इंडिया के नाम पर पड़ा, इससे ये पता चलता है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स from the ancient times, and that is why its name is been given as Indian Ocean, क्योंकि olden time से ही बहुत ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए फेमस रहा। and it is bounded by three sides land masses, and that is why it was given the name of India, means its name formed on the name of India, that is Indian Ocean. The next ocean is the Arctic Ocean. The Arctic Ocean lies within the Arctic Circle and the North Pole. Arctic Circle और North Pole के बीच में है ये Arctic Circle, and it is the smallest ocean of the world, और ये दुनिया का सबसे छोटा ओशन है। It is a small, the Bering Strait, a narrow stretch of water. बेरिंग स्ट्रेट जो कि एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है, कनेक्ट्स द आर्कटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक और आर्कटिक ओशन को जोड़ती है। एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द अटलांटिक ओशन ऑन इट्स सदर्न साइड, और इसके सदर्न साइड से अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है ड्यू टू इट्स लोकेशन विद इन द पोलर सर्कल, और इसकी पोलर सर्कल में लोकेशन होने की वजह से द आर्कटिक ओशन रिमेन्स कवर्ड विद आइस मोस्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि ये पोलर रीजन में है, नॉर्थ पोल पे है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम दिस ओशन इज़ कवर्ड विद आइस। एंड नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। वी ब्रीथ इन एयर, yes, we breathe in air, and the air surrounds the earth like an envelope. Air इस अर्थ को एक एनवलप की तरह ढके हुए है, घेरे हुए है, और द एनवलप ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इसको अंडरलाइन आप लोग करते जाइए। द एनवलप, जो ये एनवलप एयर का बना हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एंड फॉर्म्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेल्स ऑफ द अर्थ। ये एक इम्पॉर्टेंट रेल बनाता है अर्थ का। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 1600 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, और इसकी हाइट कितनी है? अर्थ सरफेस से 1600 किलोमीटर्स तक। However, most of the air we breathe in this found close to the surface of the earth। लेकिन जहाँ तक हमारी ब्रीदिंग
एयर का क्वेश्चन है या सवाल उठता है, तो जिस एयर में हम ब्रीथ करते हैं वो लगभग अर्थ के सरफेस के आसपास तक ही रहती है। सो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, द गैसेस, द रेशियो ऑफ गैसेस आर गिवन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, अदर गैसेस 0.1% है, एंड आर्गन इज़ 0.9%. So these are the different gases which are making the air which we breathe. So the air is a mixture number of gases. Air बहुत सारी gases का mixture है. The most important constituent of the air are nitrogen. और जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं जिससे एयर बनती है वो उसमें है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन अमाउंट्स टू नियरली 78%. नाइट्रोजन का कितना अमाउंट है इसमें? 78%. द वॉल्यूम ऑफ एयर वाइल ऑक्सीजन मेक्स अबाउट 21%. ऑक्सीजन कितना है? 21%. द रिमेनिंग 1% ऑफ एयर इंक्लूड्स ऑल द रिमेनिंग गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर. और जो बाकी गैसेस हैं वो उनका 1% है जो कि एयर में और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर इम्पॉर्टेंट टू अस. एयर में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ऑक्सीजन इज़ अ लाइफ ब्रेथ एज ऑल लिविंग बींग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो हमारी लाइफ ब्रेथ है क्योंकि हम सभी जो ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन ही करते हैं, इनहेलिंग करते हैं. नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इट गिव्स ग्रोथ टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे इंसेक्ट्स हैं, चाहे मीन्स ऑल लिविंग बींग्स. एंड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हेल्प इन प्लांट ग्रोथ. ये भी प्लांट ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट है. रेन एंड स्नोफॉल विच प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वाटर टू द प्लांट्स कम फ्रॉम द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब जो रेन और स्नोफॉल विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स, दैट कम्स फ्रॉम लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. वो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर से हमें मिलता है. एटमॉस्फेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in supporting life system. एटमॉस्फेयर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हमारे सपोर्ट करता है. एंड इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. इससे हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं करता, बट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. लेकिन ये अर्थ की चारों तरफ एक ब्लैंकेट का काम करता है. प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर around the earth keeps temperature fairly even on the earth. और जो ये एटमॉस्फेयर है जो क्योंकि ये हमेशा हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है तो ये अर्थ का टेम्परेचर और हमेशा इवन बनाए रखता है, मीन्स एक्सट्रीम नहीं होने देता है. इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता हमारी अर्थ पे, ये हमारा ब्लैंकेट नहीं होता, तो डेज़ विल बी एक्सट्रीमली हॉट. डेज़ हमारे एक्सट्रीमली हॉट होते हैं और एक्सट्रीम नाइट्स एक्सट्रीमली कोल्ड एज हैपन्स ऑन द मून, जैसे कि मून पे होता है. नाउ नेक्स्ट realm is the biosphere. Biosphere क्या कहता है? The three major realms of the earth, the land and water and air come in contact in the narrow zone. हमने शुरू में भी बताया था आपको कि जहाँ ये तीनों realms मिलते हैं, that narrow contact zone is called the biosphere. और बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ all living organism, plants and animals live. And the biosphere is a unique feature of the earth. Biosphere अर्थ का एक unique feature है. This zone of life extends slightly below the surface of the land. और ये zone जो जहाँ पे life है ये कहाँ से शुरू होता है? अर्थ सरफेस से थोड़ा सा नीचे से, मीन्स अंडर द लैंड सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस, वहाँ से ये शुरू होता है इनटू वाटर एंड स्लाइटली अबव द सरफेस इनटू द एयर. ये वाटर से शुरू होकर जाता है स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ द इनटू द एयर.
द बायोस्फीयर हैज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोस्फीयर में एक बहुत बड़ी वैरायटी ऑर्गेनिजम्स की मिलती है। दे वेरी इन साइज, ये सब आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं साइज़ में। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया टू द लार्जेस्ट ऑफ एनिमल्स सच एज द व्हेल्स एंड एलिफेंट्स। द प्लांट्स ऑल्सो वेरी इन साइज फ्राम फंगस टू द लार्जेस्ट ऑफ द ट्रीज। प्लांट्स भी यहाँ हमको मिलते हैं फंगस से लेके, जो कि एक स्मॉलेस्ट साइज़ का प्लांट है, उससे लेकर और लार्जेस्ट ट्रीज तक। द ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन द बायोस्फीयर आर डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जो हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं बायोस्फीयर में, इसको हम टू उसमें कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। Human beings are the most important occupants of the biosphere and they are a part of the animal kingdom। और human beings भी एक important part है, important occupant है biosphere में, जिसको हम animal kingdom में count करते हैं। All the realms or the spheres of the earth are connected with each other। अब हम जब बात करते हैं, हमारा ecosystem है, it is called ecosystem। all realms on the sphere of the earth are connected with each other। ये सब एक दूसरे से connected है। Any change in one realm will affect the other। कैसे होगा? Suppose if we are cutting the trees and forests, it will definitely cause the soil erosion। It will definitely take away the shelter of the animals and birds who are living in forest, है ना। So this may lead to increase amount of silt in the rivers also and thus flooding of the rivers। जब हम पेड़ काट देंगे तो there will not be any capacity in the earth to bound the soil, क्योंकि जब हम trees लगाते हैं तो the roots are there to bound the soil and water within it। और जब हम trees ही काट देंगे तो soil will erode very frequently, very easily and will not be able to control। उससे क्या होगा? बड़े बड़े सिल्ट्स बन जाएंगे जगह जगह, बड़े बड़े, और कहीं भी वाटर स्टेबल नहीं होगा, कहीं भी हम वाटर को सस्टेन नहीं कर पाएंगे और वाटर के साथ साथ सॉइल भी इरोड होती जाएगी। सो नॉर्मली द बायोस्फीयर रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस। ज़्यादातर बायोस्फीयर बैलेंस की स्टेट में रहता है। द न्यू ट्रीज रिप्लेस द ओल्डर वंस। हम जब ओल्ड ट्रीज़ काटते हैं तो वी डेफिनेटली प्लांट न्यू ट्रीज़, है ना, रिप्लेस कर देते हैं ओल्डर ट्रीज़ को न्यू वंस। एंड द सबमर्जेंस ऑफ लैंड। अगर हम ट्रीज़ को काटते चले जाएंगे और अगर हम उनको रिप्लेस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी लैंड सी के अंदर जाके समा जाएगी, सबमर्ज हो जाएगी, समा जाएगी और फिर हमको लैंड देखने को भी नहीं मिलेगी। सो दस नेचर हैज़ अ कैपेसिटी टू रीजनरेट इट। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचर में अपने आप में कैपेसिटी है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सके। All organisms in the biosphere are also connected with each other। अब जो अभी मैंने आपको 2 मिनट्स पहले बताया था, इकोसिस्टम, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं बायोस्फीयर में वो सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे हैं? द एनिमल्स डिपेंड फॉर फूड एंड प्लांट्स। एनिमल्स फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। दे कैन नॉट गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द लैंड और वाटर और एयर। ओनली द प्लांट्स हैव द कैपेसिटी ऑफ ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम द लैंड। और लैंड से सिर्फ प्लांट्स में कैपेसिटी है कि वो अपना फूड गेन कर सकते हैं। एंड दे दस any change in any one component of the environment leads to changes in the other components also। और जब हम किसी एक component को destroy कर देंगे तो it will definitely create destruction to other components। हमने plants ख़त्म कर दिया तो plant eating animals ख़त्म हुए, plant eating animals ख़त्म हुए तो जो flesh eating animals हैं, जो वो carnivore animal हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके साथ साथ human beings भी ख़त्म होंगे because they will not be able to get oxygen, they will not be able to subside their carbon dioxide
So it is very much important because all the all are interconnected with the all other components which are present in the biosphere. They are interconnected, and that is called ecosystem. Means we are very much dependent on each other, or any distraction or any problem in any component will definitely create or give birth to other component, means a loss of life. So for this, forests are being cut and animals have been hunted, और फॉरेस्ट भी दिन ब दिन काटते जा रहे हैं, हम एनिमल्स को हंट करते जा रहे हैं सिंस द वेरी एंशिएंट टाइम्स. सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन रिमूव्ड. कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो अब एक्सटिंक्ट हो गए, जो कि अब हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ बाय मैन. क्योंकि उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैन, who has cut all the forest and who has hunt all the animals. So those are the things which are extinct from the earth. Now the use of energy, giving substances such as coal and oil. अब हम एनर्जी सोर्सेज को भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और ये क्या रिलीज़ करें? हम कोल यूज़ कर रहे हैं, हम गैस यूज़ कर रहे हैं, हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं. एंड दीज आर गिविंग राइज टू दीज आर रिलीजिंग harmful gases like carbon dioxide and carbon monoxide in the air, and these gases are harmful to life. ये gases पूरी तरह से हमारी लाइफ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए harmful हैं. The increasing number of vehicles on the roads, day by day the increasing number of vehicles are there on the roads, and factories are there. Increased amount of these harmful substances in the atmosphere, means these all, चाहे वो vehicles हैं, चाहे वो factories हैं, they are releasing harmful substances from them, है ना. चाहे वो गैसेस के फॉर्म में हो, चाहे वो हार्मफुल डेंजरस लिक्विड्स के फॉर्म में हो, एसिड्स के फॉर्म में हो. सो दीज थिंग्स आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर इन एनी वे. Similarly, many harmful products are put into the water bodies and from the factories. This makes the air and water impure. जो कि ये सब चीज़ें हमारी वाटर और एयर को कहीं ना कहीं impure कर रहे हैं. Thus parts of biosphere are getting polluted. इस तरह से बायोस्फीयर डे बाय डे पॉल्यूटेड होता जा रहा है. तो इस पॉल्यूशन को, इस पॉल्यूटेड हैबिट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? तो उसके लिए कुछ वी शुड डू. व्हाट शुड वी डू? वी मस्ट यूज़ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक विंड, सोलर एंड टाइडल एनर्जी. हमको एनर्जीज, अपने जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो चेंज करने होंगे. हमको विंड, सोलर एंड टाइडल एनर्जी यूज़ करनी होगी. Use non-polluting sources of transportation like cycle or boats instead of bikes, scooters, cars, etc. We should use non-polluting sources of transportation. हमें पैदल भी चलना चाहिए, हमें साइकिलिंग करनी चाहिए, हमें बोट्स का यूज़ करना. Plant more trees because plants will take away our carbon dioxide, है ना. तो यूज़ बायोडिग्रेडेबल बैग्स. हमें पॉलीथीन की जगह बायोडिग्रेडेबल बैग्स यूज़ करने चाहिए. जूट बैग्स है, क्लॉथ बैग है, ताकि उसको हम वो बायोडिग्रेडेबल बैग्स होंगे रादर दैन पॉलीथीन्स, जो कि बहुत टाइम लेता है इन चीज़ों के लिए. और पॉलीथीन्स आर वेरी मच हार्मफुल बिकॉज इट रिमेन एज इट इज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड, है ना. एंड गो टू स्कूल और नियर बाय मार्केट ऑन फुट और ऑन साइकिल. अगर आप घर से निकलते हैं तो डोंट यूज़ ऑल द टाइम द व्हीकल्स. यू मे गो ऑन साइकिल, यू मे गो ऑन फुट. इट विल डेफिनेटली गिव हेल्प फॉर योर हेल्थ ऑल्सो. वी शुड नॉट बर्न क्रैकर्स ऑन फेस्टिवल्स. और हमें फेस्टिवल्स में क्रैकर्स को अवॉइड करना चाहिए. द प्योरीफिकेशन और रीजनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द नेचर इज़ लिमिटेड. हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हम बात करें कि नेचर को अपने आप से रीजनरेट होने में और प्योरीफाई होने की कैपेसिटी, लेकिन वो कैपेसिटी लिमिटेड है. इफ़ द लेवल्स ऑफ पोल्यूशन
इफ़ द लेवल्स ऑफ पोल्यूशन बिकम टू हाई, अगर पोल्यूशन के लेवल ऐसे ही हाई होते रहे, देन लाइफ सपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द बायोस्फीयर विल डिक्लाइन, फिर जो लाइफ सपोर्टिंग कैपेसिटी है बायोस्फीयर की वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी. वी शुड बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग द बायोस्फीयर सो दैट इट इज़ नॉट हार्म टू मच. हमें बायोस्फीयर को सेव करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा हार्म्ड हो जाए. चेकिंग द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ नेसेसरी. ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को भी हमें टाइम टू टाइम चेक करना है. एंड अ केयरफुल यूज़ ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, जितने भी हमारे पास नेचुरल सब्सटेंसेस हैं उनको हमको केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा. उनको वेस्ट नहीं करना, चाहे वाटर है, सॉइल है, एयर है, हमको उनको वेस्ट नहीं करना. एंड ओनली मैन कैन हेल्प इन कीपिंग द बायोस्फीयर क्लीन. मैन शुड अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव. जिए और जीने दे का जो प्रिंसिपल है उसे हमें फॉलो करना है कि हम दूसरी लिविंग बींग्स को भी जीने दें और खुद भी जिए. ओनली देन ही कैन इंश्योर हिज कंटिन्यूड सर्वाइवल ऑन द अर्थ. अगर हम ये सब चीज़ें ध्यान में रखें देन विल बी एबल टू कंटिन्यू आवर सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ. I hope you have understood the chapter, and now I am giving you some homework. Now note down homework I am giving you. Now you note down, define in very short. Hydrosphere, define in very short. Hydrosphere, atmosphere and biosphere. And I think you have done I hope you have done the question answers. And there was a change in the MCQ in the previous session also. I told you about it. It is a 13 number MCQ. The answer is Aravali. Example of whole mountain is. I hope you have corrected it. So this much for today, and it was the last session for this chapter. I hope you have understood, and thank you and have a nice day.